निकोला टेस्ला ने कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट, मशीनरी या गैजेट अपने फिजिकल फॉर्म को लेने से पहले एक प्रोडक्ट डिजाइनर की मैनिफेस्टेशन में रहता है। एंड इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, गैजेट्स और मशीनरीज एंड fascinated with the world of product designer and maybe want to become a product designer one day in the future but confused about how to become a product designer, then you are at the right place. Hi everyone, my name is Surbhi and welcome back to our YouTube channel where we talk about everything you need to know about the product design and the world of product designers. But before getting started with the video, you know that make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. Let's start off with segment number 1, how to identify whether you are perfect for product designing or not. क्या आप क्यूरियस हैं एंड यू लव आस्किंग क्वेश्चन? क्या आपको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि कैसे चीज़ें फंक्शन करती हैं? Are you good with your visualization? And are you creative and love doing crafts and drawings and paintings? Then maybe you are at the right industry because all these are required to become a successful product designer. Let's discuss the segment number 2, skills which are required to become a successful product designer. The first thing is problem solving, because as a product designers you need to face a lot of problems faced by, of course, your consumer, and you will be the one who gonna resolve that. The second skill is identifying the market opportunity. मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कौन से टारगेट मार्केट के लिए सूटेबल है, कौन से पर्टिकुलर टाइम में आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंज्यूमर एंड विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम. And the third skill that is required to become a product designer is empathy. A product designer always needs a lot of empathy towards their consumer to identify what they are going through and what are the problems that they are facing which you can resolve by your product. And the fourth and the most important is solution generation, where you will take their problem and you have your own product designer skills and you merge both the things and design a new fascinating products to resolve the problems of your consumer. So basically एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर का यही मोटिव रहता है कि जो भी उनका कंज्यूमर है, जो भी उनका प्रोडक्ट बाय करने वाला है, यू कैन कॉल देम बायर, यू कैन कॉल देम यूज़र, कंज्यूमर, क्लाइंट, अलग अलग जो भी आप बोलें, बट आपका पर्पस यही रहता है दैट वट एवर यू आर डिज़ाइनिंग शुड सॉल्व और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय योर यूज़र और योर टारगेट मार्केट. Let's discuss the segment number 3, which is a case study of iPhone. So iPhone, हम अपने ज़माने में बहुत सारे आईफोन देखते आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. बट एक बार अगर कोई इंसान एप्पल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू मूव टू एनी अदर ब्रांड. वाई इज़ दैट सो? बिकॉज एप्पल ने अपने इंटरफेस से बहुत सारी कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी है. एट द सेम टाइम द एस्थेटिक्स आर वेरी सिंपल, मिनिमलिस्टिक एंड स्लीक, जिसके कारण ये बहुत लाइट वेट और बहुत क्लासी दिखता है. इसके अलावा अगर इसके फीचर्स में जाएं तो इट इज़ सो यूज़र फ्रेंडली कि एक बार अगर कोई भी कंज्यूमर एप्पल का इंटरफेस यूज़ कर लेता है तो एंड्रॉयड फिर उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए दे डोंट वांट टू मूव बैक टू एंड्रॉयड. वाई? बिकॉज इट इज़ सॉल्विंग lot of problem, it is making the life of their consumer easy. That is also a work of a product designer. So as a product designer you can design abundance of things and the purpose is to make the consumer addict to your product. आपका ये पर्पस होना चाहिए कि एक बार आपका कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर ले, देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू स्विच बैक टू अनदर प्रोडक्ट, just like Apple. Segment number 4, let's talk about the market size of product design India and globally. So India में बात करें तो based on many reports 2023 के डेटा के हिसाब से 18
billion is the market size of product design in India and it is predicted कि 2023 से 2030 के बीच में ये मार्केट साइज 15 to 20% इंक्रीज होगा। ये बात हुई इंडिया की, और ग्लोबली द प्रोडक्ट डिज़ाइन मार्केट साइज इज वर्थ $210 बिलियन एंड प्रेडिक्ट हो रहा है कि 2030 तक के ये जो मार्केट साइज है ये 10% इंक्रीज दिखाएगा। सो इट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, और कई डिकेड्स में ये भी बोला जाता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर विल बी अ मोस्ट हाई पेइंग जॉब, और एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होगी, जिसके कारण आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। Let's talk about the employers of product designers. So all the big companies that you see around the world wants to hire product designer. उनको किसी न किसी aspect of their business and company they require a product designer. So the major employers in product designing are Meta, then Microsoft, Apple, Amazon, all these big companies including Google also, they want product designer for their business. ये बात हुई एम्प्लॉयर्स की। नाउ लेट्स मूव टू द सैलरी विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू आर चूजिंग योर करियर। सो इंडिया में अगर बात करें तो एज अ फ्रेशर, जब आपने जस्ट अपना कोर्स कंप्लीट किया है, वेदर इट इज़ अ डिप्लोमा और अ डिग्री और अ मास्टर्स, इनिशियल लेवल में तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरेज सैलरी होती है 5 से 10 लाख के बीच में। ये कई फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कितनी स्किल्स है, आपका एक्सपीरियंस पहले है कि नहीं है, इंटर्नशिप्स आपने कहाँ से करी है, आप कौन सी सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपने कहाँ से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स किया है। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सैलरी पैकेज कितना रहेगा। बट एज अ फ्रेशर एवरेज यही रहता है कि 5 से 10 लाख तक का तो होता ही है, बट ये अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से वेरी करता है। इन सेगमेंट नंबर 7 लेट्स डिस्कस द टेक्निकल स्किल्स which is required to become a product designer. The first thing is aesthetic skill. As a product designer, आप सिर्फ प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि आप ये भी ध्यान देते हैं that the product also looks pretty, because nowadays nobody wants to bring a product to their home which is very functional but looks ugly, right? Because everybody wants कि जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं adds on to the interior of their home, should match the interior of their home in some ways. Okay, so that is why first and the foremost is aesthetic skills. Second, you should know the skills of using all the software, important CAD software, CAD CAD software, ये सबको आना चाहिए। इसके अलावा basic knowledge of UI UX design, that is also very required. Then next है organization skill, क्योंकि as a product designer you will be working with teams, you are the one who will be handling a team of designers. Maybe there आप initial level में आप एक टीम का मेंबर होंगे, बट फ्यूचर में आपकी खुद की एक टीम बनेंगी जिसको आप लीड करेंगे, और आपके अंदर सम न्यू फ्रेशर्स, असिस्टेंट डिज़ाइनर्स होंगे जिनको आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको उनको सिखाना पड़ेगा। सो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन स्किल। एक किसी भी तरह के डिज़ाइनर के लिए, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या ऑफ कोर्स प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है ये वर्क करती है ऑन योर कनेक्शन विद पीपल, हाउ यू सोशलाइज विद पीपल। बिकॉज जब आप सोशलाइज करते हैं, यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग टू पीपल एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर कॉन्टैक्ट्स। एंड to increase your chances of getting successful in your career, it is very important that you are a good communicator. So learn the art of communication. It is very important. In segment number 8, let's talk about the roles and responsibilities of a product designer. As a product designer, your first and foremost responsibility is to identify the need of the product. कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मार्केट का रिसर्च करना इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। देन फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में कैसे ट्रेंड्स होंगे,
प्रोडक्ट कैसे लगेंगे, एस्थेटिकली कैसे लगेंगे, क्या फंक्शनैलिटीज प्रेफर करेंगे लोग फ्यूचर में, दैट इज फोरकास्टिंग. सो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर. इसके अलावा to understand the needs and the requirements of the consumer is also again a roles and responsibility of a product designer. Once you have identified the need, then you will be ideating, you will be brainstorming, you will be generating multiple ideas and then shortlisting the ideas which are most practical, most logical and the most implementable idea जो आपके consumer के problem को resolve कर दे. Once you have generated the idea, then you will be doing prototyping. Then आपको prototype बनाना है. Prototype is making the live sample, the working model of the product that you have designed. Once prototyping is done, then you will be the one who will be handling the sampling कि कौन सा prototype है वो किन लोगों को देना है for their feedback. ठीक है. सो आप लोगों के बीच में से एक सैम्पल साइज निकालते हैं और उन सैम्पल पीपल को आप अपना प्रोटोटाइप देते हैं टू यूज़ एंड टू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक whether the product is actually helping them or not, whether the product is actually useful for them and making their life easier or not. And इसके अलावा as you will be working in a company, you will also be responsible for making reports, leading a team and managing and planning the execution of products. In segment 9, let's talk about what education that you can pursue if you want to become a product designer. First, you can do a BDes in product designing, that is a bachelor's in design of product design. So एक BDes डिग्री आप कर सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में. इसके अलावा एक बैचलर्स डिग्री आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी कर सकते हैं. इसके अलावा देयर इज अ कोर्स कॉल्ड विजुअल आर्ट्स, आप उसको परस्यू कर सकते हैं. देन मटीरियल इंजीनियरिंग ऑल्सो कैन बी डन एंड देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर. इन सेगमेंट 10, लेट्स डिस्कस द बेस्ट कॉलेज दैट we have in India and globally for product designing. Let's start off with international colleges. First is Parsons Schools of Design, which is there in New York. Second is Pratt Institute, which is again in New York. Then we have Georgia Tech and SCAD University. Both of them are in USA and very renowned universities for product designing. अब इंडिया की बात करें तो the best option that we have is product designing from IITs. Yes, IITs also offer BDes, that is Bachelor's of Design, जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर डिज़ाइन इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज NID. वहाँ से भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन परस्यू कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन परस्यू कर सकते हैं. WUD इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन विद द फुल फॉर्म ऑफ इट इज़ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन. देन वी ऑल्सो हैव वन यूनिवर्सिटी कॉल्ड अनंत नेशनल University, and then there's one international university जो इंडिया में भी है which is Institute of Marangoni, जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन परस्यू कर सकते हैं. कॉलेजेस तो पता चल गए, बट इन सेगमेंट 11 लेट्स डिस्कस कि एक परफेक्ट कॉलेज कैसे चूज़ किया जा सकता है. अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं जो मैंने अभी अपनी लिस्ट में मेंशन नहीं किया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट देयर आर फ्यू क्राइटेरिया जो आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल चूजिंग द कॉलेज. सबसे पहला, हाउ ओल्ड इज़ द कॉलेज. कॉलेज को कितना एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर डिज़ाइन में, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एक कॉलेज को, उतना ज़्यादा उनका कनेक्शन होगा इन द इंडस्ट्री, उतना ज़्यादा उनका एलुमनाई नेटवर्क होगा और उतना ही ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होगा टू टीच द प्रोडक्ट डिज़ाइन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ने की सोच रहे हो जो अभी अभी खुला है 1 साल या 2 साल पहले, आई पर्सनली वोंट रिकमेंड इट, क्योंकि अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है. दे आर ऑल्सो लर्निंग कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का कॉलेज कैसे रन करना चाहिए, फैकल्टी भी नहीं होगी. सो इट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड टू गो फॉर अ कॉलेज जिसका ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो. द सेकेंड थिंग इज़ ऑफकोर्स द सिटी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप जब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के पढ़ाई करते हो, वहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रह के पढ़ाई कर रहे हो या बैंगलोर में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे सिटीज़ में मूव नहीं करना पड़ेगा, आप अपने एजुकेशन और इंटर्नशिप्स को साथ में बैलेंस कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आपके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कई बार बीच बीच में इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। आप एक छोटी जगह में रह के अगर कर रहे हैं देन ऑलवेज आपको इंडस्ट्रीज़ ढूंढने के लिए आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मूव करना पड़ेगा। देन द थर्ड क्राइटेरिया इज़ टू चेक विच फैकल्टीज़ आर टीचिंग, कौन से वो फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ा रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितना एक्सपीरियंस उन्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन में कहाँ से किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के ब्रोशर में मिल जाती है, जो आपको रिसर्च करना है अच्छे से ताकि आप एक अपने लिए परफेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन का कॉलेज ढूंढ सकें। द लास्ट सेगमेंट दैट वी हैव टुडे इज द बुक्स टू रीड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन। सो आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप या अगर 11th में हैं या 12th में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, बट अभी आप एक्चुअली प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टार्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो रीड बुक्स जो आपको एक्चुअली आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करें, आपको एक डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से सोचने का जो स्किल होता है वो डेवलप कराएं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल बुक दैट वी हैव इज डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बाय डॉन नॉर्मन। इट्स अ वेरी गुड रीड। अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता हो, नहीं पढ़ी हो और डिज़ाइनर बनना है, किसी भी तरह का डिज़ाइनर बनना है, पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, एक कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव समझने को मिलता है, एक डिज़ाइनर को किस नज़रिए से चीज़ों को देखना है वो सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो ये बुक पढ़ लो। द सेकेंड बुक दैट आई विल रिकमेंड द सिंपल थियोरी ऑफ स्केचिंग। To become a product designer or any sort of designer, it is very important to know sketching. The sketching is very important so that you can communicate your ideas. जो आपके दिमाग में है उसको पेपर में भी उतारना आना चाहिए, so that आप वो जो डिज़ाइन है दूसरों को कम्युनिकेट करके बता सके। That is why sketching सीखना is important. So अभी से स्टार्ट कर दीजिए। So yeah, that was all about today's video. If you found this video helpful and informative, make sure to like this video। और अगर अभी भी कोई और डाउट्स है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन के कॉलेज के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, डोंट वरी, बिकॉज इस चैनल में हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हम हर दिन एक नया कंटेंट अपलोड करते हैं ऑन डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ NID, NIFT एंड UC। इफ़ यू हैवेंट चेक्ड आउट दोज वीडियोज़, डू चेक इट आउट। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। आई विल श्योरली हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।